Hey guys, तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे थे? वी हैव स्टडीड अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट? सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग देख रहे थे कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा. सो वी हैव टॉक अबाउट व्हाट? वी हैव टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, राइट? So what is the condition for forming sigma bond? First we have to fix the internuclear axis, and after that the bond, the overlapping which will take place along that internuclear axis, that will lead to the formation of sigma bond. Okay, so when we are talking about a sigma bond, what are the different overlap that we have seen in the sigma bond formation? It is SS overlap, SP overlap और PP overlap, right? So ये तीनों overlap हम लोग देखे थे. For example, if we talk about hydrogen formation, H2 कैसे बनेगा? H2 will form due to 1s1s overlap between two hydrogen atoms, right? If you have to form HF molecule, how does it form? It will form with the 1s of hydrogen overlap with the 2p of fluorine, clear? Then how do you form chlorine molecule? It is 3p of one chlorine overlap with the 3p of another chlorine. That's how we form different molecules. So whenever we are discussing this, है ना? So we right now what we are considering about only diatomic species, because हम लोग polyatomic में जाएंगे बेटा तब हमारे पास एक नया प्रिंसिपल आएगा, that is hybridization. So now we are concerning about a diatomic. So we have seen SS overlap, SP and PP overlap. और ये पढ़ने के लिए what we have studied? We have studied the valence bond theory. So what are the postulates of valence bond theory that we have studied? First postulate, it says that valence orbital or the valence electron, which valence electron? They are unpaired. So valence orbital having unpaired electron, that will take part in bond formation, correct? And it will form a bond pair. Then valence orbital with a filled with a pair of electron, that will not take part in bond formation and it will form a lone pair. After that what we have studied कि जो भी इलेक्ट्रॉन जो आने वाले, जो ओवरलैप, जो बॉन्ड बनाने वाले, उन इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे होनी चाहिए? अपोजिट. इफ वन इज ऑफ अपवर्ड स्पिन देन अदर मस्ट बी ऑफ डाउनवर्ड स्पिन. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्बिटल, बिकॉज ऑर्बिटल इज नथिंग बट इज अ वेव फंक्शन, सो द टू ऑर्बिटल विच आर ओवरलैपिंग, है ना, दे मस्ट बी ऑफ, दे आर हैविंग अ सेम फेज. उनका फेज क्या होना चाहिए? सेम. तो एक का अगर पॉजिटिव फेज है तो दूसरे का पॉजिटिव होना चाहिए. अल्टीमेटली दैट लीड्स टू अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन दिस टू ऑर्बिटल्स, राइट? एंड द लास्ट वन इज दैट हायर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. जितना ओवरलैपिंग तुम्हारा ज्यादा होगा उतना तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, है ना? तो दीज आर द पोस्टुलेट्स आर इन बीबीटी, एंड यूजिंग दिस पोस्टुलेट्स वी आर अटेम्प्टिंग टू बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना? हम लोग बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. आगे की बात करते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने कल सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट कर लिया था और सिग्मा बॉन्ड में हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी. तो अभी हम लोग बात करेंगे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की. ओके, सो क्या बोल दिया था हम लोगों ने? सपोज फॉर सिग्मा बॉन्ड और इससे एक्सियल ओवरलैपिंग, फर्स्ट वी हैव टू फिक्स INA, internuclear axis, and then overlapping takes place along INA, leads to formation of sigma bond. Right, so here we have studied about SS overlap, SP overlap and PP axial. These all are axial overlap, clear? Now we'll talk about a pi bond. Okay, so talking about pi bond, what we will do? So what is the condition necessary for pi bond to form? So first, after fixing the internuclear axis, the orbitals which are parallel to each other, ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? एक दूसरे को पैरेलल. द ऑर्बिटल विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विल फॉर्म पाई बॉन्ड. व्हाट इज द कंडीशन? द ऑर्बिटल्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विल फॉर्म पाई बॉन्ड. अनदर कंडीशन इज दैट देयर शुड नॉट बी हैविंग एनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. करेक्ट है? जो ऑर्बिटल तुम्हारे पाई बॉन्ड बना रहे हैं उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग आईएनए क्या होनी चाहिए? जीरो. देयर मस्ट बी हैविंग जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग आईएनए फॉर द ऑर्बिटल्स which are forming pi bond. So that we'll discuss about a pi bond, that is sideways overlap.
sideways, or you'll say parallel, a lateral overlap. So what is the condition that we need to say? First, after fixing INA, orbitals which are parallel to each other and almost perpendicular to each other, perpendicular to INA. जरूरी नहीं होता है बट होना चाहिए, ठीक है. पैरेलल कंडीशन मस्ट बी देयर, पैरेलल तो होने ही चाहिए, एंड ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू INA विल फॉर्म sideways overlap, will form sideways overlap. What is the condition? Another, they should not be any electron density along INA for orbitals forming sideways overlap. ठीक है. And this sideways overlap leads to the formation of sideways overlap leads to the formation of pi bond as well as delta bond. ठीक है. अब ये होता क्या है पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड की अगर हम लोग देखते हैं, बातें करते हैं, सो व्हाट अबाउट पाई बॉन्ड एंड व्हाट इज डेल्टा बॉन्ड, दैट विल डिस्कस. ओके, सो बनना कैसे, जैसे देखो दिस इज व्हाट योर पोस्टुलेट फॉर पाई बॉन्ड. ठीक है, तो कैसे बनेगा पाई बॉन्ड? सपोज आई फिक्स INA एज एक्स एक्सिस, सपोज we fix INA as x एक्सिस. कौन सी एक्सिस फिक्स कर दी मैंने? x एक्सिस फिक्स कर दी एज INA, करेक्ट. सो अगर मेरी x एक्सिस फिक्स हो गई तो x एक्सिस को परपेंडिकुलर क्या बोला है? द ऑर्बिटल विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द INA. सो x एक्सिस को परपेंडिकुलर कौन कौन होगा? तो सपोज p, चलो मान लेते हैं s ऑर्बिटल तो अलोंग ऑल एक्सिस होते हैं, उसका परपेंडिकुलर रहेगा, सवाल ही नहीं है. और बात भी करेंगे हम लोग कि वेदर s ऑर्बिटल विल फॉर्म पाई बॉन्ड और नॉट. But if you have to talk about p orbital, suppose I am considering x as an internuclear axis. So what are the p orbitals which are perpendicular to x axis and parallel to each other? So मैं मान लेता हूँ एक एटम होगा, उस एक एटम की py है और दूसरे एटम की भी py है, बराबर है. ये पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज. Now what will happen? Suppose देखो this is a kind of representation. और एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है कि द बेसिक रिप्रेजेंटेशन विल बी लाइक दिस. ये लोब ऐसे दिखाए जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके लोब ऐसे होंगे. और सपोज इफ आई एम सेइंग दिस इज अ py ऑर्बिटल, व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर दिस py ऑर्बिटल? द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस xz नोडल is along x axis. What is the electron density along x axis? 0, right? That is what our second condition. There should not be any electron density along INA for orbital forming sideways overlap. अगर py पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर मेरी INA जो है वो x एक्सिस है, तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग x क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, जो कि कंडीशन दिख रही है मुझे. तो द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम फेस, देयर ओवरलैप, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ये भी py है, ये भी py है, करेक्ट है. सो ये भी py, ये भी py. नाउ व्हाट दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, और इनका ओवरलैप होगा. तो दिस ओवरलैप विल टेक प्लेस लाइक दिस. और यहां पे आ जाएगा तुम्हारा ओवरलैपिंग जोन.
इज ओवरलैपिंग एरिया, overlapping area. Okay, so this is one way of showing the pi bond. Another way कि अगर मैं ऐसे लोब्स दिखाऊं, ये हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लोग ऐसे वो लोब्स दिखाते हैं, अदरवाइज इट विल बी लाइक दिस, ये लोब्स है ना, और ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये तुम्हारा ऐसा होगा, और यहां पे ओवरलैपिंग एरिया होगा, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज टू लोब इंटरैक्शन, दिस कॉल्ड एज टू लोब इंटरैक्शन. ये ऊपर में एक लोब, नीचे में एक लोब, बराबर है, इंटरैक्ट कर रहे हैं. बिकॉज बेटा वी डोंट नो वेदर द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हियर और हियर. हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी इधर होगी या तो इधर होगी, इधर होना फिक्स है क्या? नहीं. सो ये भी ओवरलैप कर सकता है, ये भी ओवरलैप करेंगे ऑर्बिटल से बेसिकली. सो देयर आर टू इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स आर फॉर्म, देयर आर टू इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आर फॉर्म अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, मतलब अबव इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. अगर ये मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स हो गई, इफ दिस इज माय INA X, so electronic cloud is formed above this INA, below this INA. तो क्या हो रहा है, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स व्हाई पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड. वेयर एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज अलोंग एक्सिस, इट इज अलोंग एक्सिस. हियर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स व्हाई पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड. वो लिखेंगे भी हम लोग. सो दिस टू लोब इंटरैक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड. कितने इंटरैक्शन है? टू लोब इंटरैक्शन, एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड. बेटा ये पॉजिटिव फेज है, नेगेटिव. और ये क्या हो गया तुम्हारा नोडल प्लेन. अगर ये py है तो py के लिए नोडल प्लेन क्या होगा? xz. मतलब इस पाई बॉन्ड के लिए अगर ये py पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो ये नोडल प्लेन, पाई बॉन्ड के लिए नोडल प्लेन क्या हो गया? xz. सो फॉर दिस पाई बॉन्ड xz इज अ नोडल प्लेन. चलो मान लिया मैंने INA x एक्सिस मेंशन कर दी, INA क्या बोल दिया? x. तो py भी परपेंडिकुलर है और pz भी परपेंडिकुलर होगी, बिकॉज x y z कैसे होते हैं? सपोज दिस इज x, दिस y एंड दिस z. क्लियर है? तो ये जो pz है ऐसा होगा. सी, अगर ये मेरी x है तो x को ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है. तो अगर ये py है तो ये दूसरे की py, ये पैरेलल है और परपेंडिकुलर है, ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं. ये pz है, ये दूसरे की pz है, ये दोनों pz एक दूसरे को पैरेलल और परपेंडिकुलर टू INA, वो भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं. क्लियर है? सो दैट विल सी क्लियर कि कौन कौन बना सकता है अगर मैंने एक पर्टिकुलर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डिफाइन कर ली है तो. सो विल टॉक अबाउट दिस. हम लोग कुछ चीजें लिखते हैं इसके बारे में. सो सिंस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड it is a two law interaction, it is a two law interaction. So here during formation of pi bond electron density is distributed above and below to the internuclear axis. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो गई है. सो इट इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, हेंस इट इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, it is not concentrated. Therefore overlapping area decreases and bond strength decreases. Clear? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. अब यहाँ पे दो जगह पे सिग्मा में क्या हो रहा था? एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट था. सिग्मा ऐसे हो रहा था अलोंग एक्सिस, कोई भी ले लो. अगर PP सिग्मा बन रहा था तो ये अलोंग एक्सिस, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट थी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी रीजन में. यहाँ पे क्या हो रही है? दो अलग अलग रीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दो अलग अलग रीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. सो दैट्स व्हाई
pi bond is weaker than sigma bond. pi bond is weaker than sigma bond. क्लियर है? pi bond sigma bond से क्या होगा? वीकर होगा. अब देखो बेटा बात कैसे समझनी है हम लोगों को. अगर मैं एक पर्टिकुलर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डिफाइन कर लेता हूं तो पाई बॉन्ड बनाने वाले एक्सिस मतलब ऑर्बिटल अलग अलग हो सकते हैं. जैसे मैंने अगर एक्स डिफाइन कर लिया तो पी वाई पाई बॉन्ड बना सकती है, पीजेड आपस में पाई बॉन्ड बना सकती है. करेक्ट है? पी वाई पीजेड कुछ बनाएगा क्या? नहीं. सो द ऑर्बिटल्स which do not result into the formation of bond, they are called as non-bonding orbitals, non-bonding molecular orbitals. The orbitals लिख देते हैं वो भी, the orbitals which do not leads to any kind of overlapping or do not lead to formation of bond called as non-bonding molecular orbital, NBMO, non-bonding molecular orbital, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एनबीएमओ. जो ऑर्बिटल कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे उनको हम लोग एनबीएमओ बनेंगे. क्या बोलेंगे? एनबीएमओ. ठीक है. तो अभी हम लोगों ने कौन सी बात डिस्कस करी है? पाई बॉन्ड की बात डिस्कस करी है. पाई लोब कितने इंटरेक्शन हो रहा है? 2 लोब इंटरेक्शन. अब हम लोग अगर आगे की बात करते हैं, अगर मैं आगे की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? देखो पाई बॉन्ड के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं चीजें. सो सपोज इफ आई एम कंसिडरिंग एक्स एज अ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर मैं एक्स को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेता हूं कोई भी मॉलिक्यूल के लिए, इफ आई एम कंसिडरिंग एक्स एज अ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर मैंने एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर कर ली है तो देखो एस जो है एस वो क्या बना सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं. हम लोग जनरलाइज ले रहे हैं बेटा. ठीक है? एस क्या बना सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड. बिकॉज एस कोई भी एक्सिस के अलॉन्ग आ सकता है. एस पी एक्स क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड. क्लियर है? एस पी वाई क्या बनाएगा? एस पी वाई एस पी जेड. ये बात करनी है हमको. तो ये बनाएंगे नो बॉन्ड. ये क्या बनाएंगे? नो बॉन्ड, एनबीएमओ. क्यों? देख लेते इसका रीजन. तो एस ऑर्बिटल, मुझे बताओ पाई बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन क्या है? पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू आईएनए एंड देयर शुड नॉट बी एनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. अब ये मान लो एस और ये एस है बेटा. एस हमेशा क्या आएंगे? अलोंग एक्सिस ही आएंगे. कोई भी एक्सिस ले लो. कभी लैटरल हो सकते हैं क्या? नहीं. सो एस नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड. क्लियर है? अब एस अगर एक्स आयन है, एक्स आयन है, ये एस है और ये पी एक्स है, तो पी एक्स ऐसी आएगी अलोंग एक्स, तो इनके बीच में ओवरलैप होगा. करेक्ट है? ये ओवरलैप हो गया और यहां पे तुम्हारा बॉन्ड बन गया. कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड. कौन सा बना? इज एस पी एक्स, सिग्मा बॉन्ड अलोंग एक्सिस है. लेकिन नाउ टेल मी वन थिंग, ये अगर एस है, ये एस है और अगर ये मेरी पी एक्स है, पी वाई है, बिकॉज एक्स आई एन ए डिसाइड कर ली मैंने. कौन सी आई एन ए डिसाइड कर ली? एक्स आई एन ए डिसाइड होगी. तो अभी अगर मैं ये पी वाई लेता हूं, पी वाई, तो देखो पी वाई जब आएगा तो क्या ओवरलैपिंग होगी तुम्हारी? ऐसे आएगा ये, तो ऐसे कुछ दिख रहा है. बराबर है? अब बेटा इसमें दिक्कत क्या आ रही है? देखो एक्स आयन है तो पहली बात पी वाई को तुमको ये ऑर्बिटल क्या चाहिए? पैरेलल चाहिए. चलो मान लिया यस मैंने पैरेलल भी है, लेकिन व्हाट इज माय सेकंड कंडीशन? व्हाट इज माय सेकंड कंडीशन? देयर शुड नॉट बी एनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग आईएनए. और एस के लिए फॉर एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अलोंग ऑल एक्सिस. फॉर एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इज अलोंग ऑल एक्सिस, बराबर है। तो अगर ये ओवरलैप करना चाहो तो होगा क्या, नहीं। तो एस पी साइडवेज ओवरलैप पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। दूसरा और एक रीजन दे सकते हैं हम लोग, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो ओवरलैप। क्या होगा, जीरो ओवरलैप। सो इट इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एस ऑर्बिटल नोट लिख देते हैं हम लोग, एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगी। इट ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो भी आयन होगी उसके अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं चाहिए। जबकि एस ऑर्बिटल में जब सपोज मैंने ये मान लिया तो पी वाई है, तो एक्स एक्सिस के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। लेकिन एस में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह पे है, तो ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो एस एस में सिग्मा बन सकता है, एस पी एक्स में सिग्मा बन सकता है, एस पी वाई में कोई बॉन्ड नहीं, एस पी जेड में कोई बॉन्ड नहीं। फिर बात करते हैं पी पी, पी एक्स में क्या बनेगा, अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पी एक्स में सिग्मा बॉन्ड। पी वाई के लिए क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। पीजेड में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। ठीक है कि नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने एस और पी ओवरलैप देख लिया है, क्लियर है। फिर हम लोग डी का भी ओवरलैपिंग हमको देखना है। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द डी ओवरलैप हम लोग कोई एक मॉलिक्यूल बना के देखते हैं, ठीक है, कि यूजिंग दिस कंसेप्ट वी विल ट्राई टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जैसे हम लोगों ने H2 बनाया था, HF बनाया था, है कि नहीं, वैसे हम लोग पाई बॉन्ड का मॉलिक्यूल बना के देखते हैं। सपोज मैंने बोला बेटा O2 मॉलिक्यूल बनाना है मुझे, क्या बनाना है, O2। ओके, अगर मुझे O2 बनाना है, O2, तो क्या बोलोगे, सर दो ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ग्राउंड स्टेट में। मैं भी हर बार ग्राउंड स्टेट लिखूंगा, ग्राउंड स्टेट और वैलेंस शेल लिखते रहूंगा। तो व्हाट इज कन्फिग्रेशन, 2s2 2p4, 2s2 2p4, बराबर है 2s2 2p4, क्लियर। ये भी 2s2 2p4। अब क्या होगा, देखो अगर मुझे बॉन्ड बनाना है तो व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टेल्स अबाउट दैट, कि ओनली अनपेड वैलेंस ऑर्बिटल विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। वैलेंस ऑर्बिटल अनपेड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस ऑर्बिटल अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट। सो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ यही बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं। ये बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं, नहीं, ठीक है। सो दे विल फॉर्म योर लोन पेयर। तो एक लोन पेयर, एक ऑक्सीजन की लोन पेयर एस में है, दूसरे की भी एस में है, पी में है। चलो नाउ आई विल कंसीडर, आई डिसाइड Z एज आयन है। कौन सा डिसाइड किया, Z आयन है डिसाइड कर लिया, Z को आयन डिसाइड कर लिया, क्लियर है। चलो और कन्वीनियंट कर देता हूँ, Y को आयन डिसाइड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। Y को आयन डिसाइड कर लिया। तो अब देखो अगर मैंने Y को आयन डिसाइड कर लिया है तो क्या होगा, क्लियर। ये है मेरी X, ये है Y और ये है Z। वैसे ही दूसरा ऑक्सीजन, क्लियर। ओके, दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z। अब देखो इनमें से अगर मैंने Y आयन डिसाइड कर लिया तो एक जो होगी वो Y के अलोंग लिख देते हैं हम लोग, p ऑर्बिटल है प्लस माइनस, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा। ये दूसरी कौन सी है, pz, और ये ले लेते px। तो px में लोन पेयर है, कोई काम की नहीं हमारी, ये pz हो गई और ये हो गई py, क्लियर। वैसे ही इसके लिए प्लस माइनस, ये मिटा देता हूं मैं, अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ठीक है,
प्लस माइनस। और हर चीज में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। वैसे ही इधर की केस है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और एक पी ऑर्बिटल भी है इसकी, कौन सी, pz। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तुम्हारी आयन है, आयन क्या डिसाइड कर लिया मैंने, y। तो बेटा ये py है और ये भी py है, दिस ऑल्सो py, दिस pz, 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 दिस py, py। तो ये py कैसे आएंगे, py आएंगे तुम्हारे अलोंग एक्सिस, ये py है और ये भी py है, ये कैसे आ रहे हैं, अलोंग y एक्सिस। कौन सा ओवरलैप हो गया, एक्सियल ओवरलैप। तो ये एक्सियल ओवरलैप से तुम्हारा कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। अब ये pz है, ठीक है, समझो अभी मैं ऐसे, मेरे लिए डिफिकल्ट है ऐसे पकड़ना, ये pz है और ये pz है। बेटा अगर इन लोगों ने एक्सियल ओवरलैप किया है तो अब ये pz एक्सियल कर सकते हैं क्या, नहीं। तो अब ये दोनों pz कैसे आ रहे हैं, पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू आयन, बराबर है। इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में बनेगा पाई बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड जो बना है वो कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो पाई बॉन्ड कभी भी पहले बन सकता है क्या, नहीं। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो हम लोग जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तब उसमें कुछ थोड़ा सा एक अलग चीज पढ़ेंगे, ठीक है। सो राइट नाउ व्हाट आवर कंसर्न इज दैट पाई बॉन्ड इज आफ्टर फॉर्मिंग, पाई बॉन्ड इज फॉर्म आफ्टर फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। सो देखो, तो ये अगर ओवरलैप दिखता हूं मैं, तो ये ओवरलैप कैसे होगा तुम्हारा, ये है py, ये है py। सो दे विल ओवरलैप लाइक दिस अलोंग y इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उनका ओवरलैप ऐसे होगा, करेक्ट। सो यहां पे ये ओवरलैपिंग हो गई, ओके। और ये तुम्हारी क्या हो गई, चलो मैं इसको ये कर देता हूं, पॉजिटिव फेज, पॉजिटिव फेज, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बॉन्ड बन गया। वैसे ही अगर मैं pz की बात करता हूं, क्लियर। सो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे जो क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन रहा है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, दिस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज फॉर्म above the plane, below the plane. Why we are seeing like that? Because इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। So one pi bond resemble to two electronic clouds, two electronic cloud, ठीक है। and it is a two lobe interaction. Since it is two lobe interaction, it is two electronic cloud, above the plane, below the plane, above the plane, above the internuclear axis, below the internuclear axis, ओके। सो देखो ये ऑक्सीजन है तुम्हारा, दिस ऑक्सीजन एटम, ये भी ऑक्सीजन एटम, ये तुम्हारी y आयन थी। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, ये जो तुम्हारा बॉन्ड बना है, कैसे बना है, पहले ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये एक लोन पेयर है s ऑर्बिटल में, एक लोन पेयर है p ऑर्बिटल में, ये s ऑर्बिटल में और ये p ऑर्बिटल में। ये पहला सिग्मा बॉन्ड बना, कौन से ओवरलैप से बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है, दिस फॉर्म ड्यू टू py एक्सियल ओवरलैप, बराबर है। और ये जो दूसरा बॉन्ड बना है, दूसरा बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है तुम्हारा, पाई बॉन्ड, दैट इज pz साइडवेज ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। सो O2 मॉलिक्यूल में एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, तो वो विल राइट हियर द पाई बॉन्ड इज फॉर्म
आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्लियर है, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मीन्स सिग्मा बॉन्ड इज इंडिपेंडेंट while pi bond is dependent, while pi bond is dependent, because pi पहले बन सकता है क्या? नहीं, pi कब बनेगा? सिग्मा के बाद pi बनेगा, क्लियर? सो सिग्मा बॉन्ड इज इंडिपेंडेंट वेयर एज पाई बॉन्ड इज डिपेंडेंट। इज थिंग ओके बेटा? तो जैसे हम लोगों ने O2 का फॉर्मेशन किया तो O2 में एक पाई बॉन्ड आया, देखो अभी भी मैं डायटोमिक में ही जा रहा हूं। सो ये जो ओवरलैपिंग्स हो रहे हैं, जैसे है ना SS SP, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, ये प्योर ऑर्बिटल SP XY है ना, P D, इनको क्या बोलते हैं? प्योर ऑर्बिटल। जब हम लोग पढ़ेंगे sp2 sp3 sp3d, उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब तक हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल का काम आया क्या? नहीं, वो केसेस आएंगे पॉलीएटॉमिक में। वो किस में आएंगे? पॉलीएटॉमिक, जब मिनिमम 3 एटम रहेंगे तुम्हारे एक कंपाउंड में, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सब डायटोमिक की बात करे, ठीक है, तो एकदम बेसिक से उठ के जाएंगे हम लोग। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन डायटोमिक मॉलिक्यूल, राइट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप। सो देखो अभी, हमारा पाई बॉन्ड बना दिया हम लोगों ने, O2 मॉलिक्यूल डिस्कस कर लिया। अगर मुझे O2 हो रहा है, मतलब कितने लोब आ गए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड? 2 लोब इंटरेक्शन, 1 अबव 1 बिलो। तो अब मगर मान लो कि अगर ये पाई बॉन्ड PZ, अगर मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Y है और पाई बॉन्ड PZ ने बनाया, जरूरी है क्या PZ? नहीं, नॉट नेसेसरी। आई विल राइट हियर आल्सो, ऐसे मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर ये पाई बॉन्ड, अगर मेरी INA X है, X एक्सिस, Y एक्सिस है, यहां पे जो लिया है मैंने Y, तो ये PY क्या होगा? सिग्मा होगा, ठीक है। और पाई क्या हो सकता है? पाई जो बन सकता है आइदर PX और PZ, ठीक है, आइदर PX और PZ। मैंने क्या किया? मैंने X में लोन पे डाल दी, तो PZ ने पाई बॉन्ड बना दिया। जरूरी है क्या? नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है। ये S में ऐसा था, मैं बोल दूं ये लोन पेयर है Z में, तो फिर कौन पाई बॉन्ड बनाएगी? तुम्हारी PX पाई बॉन्ड बनाएगी। तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? PX या फिर PZ, एक ही पाई बॉन्ड है ना। तो इफ माय इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज Y, देन पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म आइदर ड्यू टू PX और PZ, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन। वैसे ही अगर X INA है तो PX क्या बनाएगा? सिग्मा बनाएगा। तो अगर PX ने सिग्मा बनाया तो PY पाई, PZ पाई। अगर 2 पाई बॉन्ड होंगे तो ये 2 ओवरलैप होंगे, अगर एक ही पाई बॉन्ड होगा तो एक तो ये बनाएगा या तो ये बनाएगा। क्लियर है? इज दिस थिंग ओके? सो नाउ विल टॉक अबाउट अनदर मॉलिक्यूल। N2 की बात करते थे, N2 में 2 पाई बॉन्ड आते हैं। सो अगर मैं N2 की बात करता हूं, देखो N2 का फॉर्मेशन कैसे होगा? N2 तो बेटा 2 नाइट्रोजन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, 2s2 2p3। पहले हम लोग कैसे बनाते थे? लेविस थ्योरम में याद करो, है ना, एकदम बेसिक। हम लोग कैसे बोलते थे? नाइट्रोजन है भाई, 5 होते हैं, 3 की जरूरत होती है तो तीनों शेयर कर देगा, ऐसे करते थे हम लोग, ऐसे बना देते थे लेविस थ्योरी के हिसाब से। लेकिन अभी हमको एक्चुअल में ओवरलैपिंग देखनी है उसकी, कैसे ओवरलैप बनता होगा, ठीक है कि नहीं? चलेगा? तो हम लोग ग्राउंड स्टेट लिख दिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, ठीक है, इसका भी 2s2 2p3। क्लियर? अब देखो, ये तो बॉन्ड नहीं बनाएगी, तो लोन पेयर तुम्हारी ये बॉन्ड नहीं बनाएगी, मतलब ये क्या बन गई? लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में जा रही है? S। कौन से ऑर्बिटल में? S। तो उसका तो छोड़ दिया हम लोगों ने नाम।
अब 3 अनपेड किसमें है, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। चलो मैं इस केस में तुम्हारी एक्स आयने मान लेता हूं। कौन सी आयने मानता हूं, एक्स, ये एक्स आयने मान लेते हैं, ठीक है, एक्स आयने मान लेते हैं, क्लियर। एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, ये बीच में न्यूक्लियस। अब इनके मैं ऑर्बिटल्स बनाता हूं। चलो ये y, ये x और ये z, तो ये px, एक नाइट्रोजन की px, ठीक है, ये उसी नाइट्रोजन की pz और ये उसी नाइट्रोजन की पी वाई, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन के तीनों ऑर्बिटल बना दिए हम लोगों ने, पी एक्स पी वाई पी जेड। दूसरे के भी बना देते हैं, दिस इज पी एक्स टू पी एक्स, वैलेंस शेल है सेकेंड शेल, तो टू पी एक्स, this 2p z, this is 2p y, ठीक है, छोटे मोटे हो गए, समझ लेना। सो ये हो गया बेटा तुम्हारी px, ये भी px, दिस py, दिस pz, pz, दिस py, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन है, हर किसी के इसमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड अनपेड अनपेड, ठीक है। फेजेस बना देते हैं, फेजेस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फेजेस बना दिए। अब देखो ये जो दो है पी एक्स, आई एन एक्स, आई एन क्या हो गया, एक्स, एक्स एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया। तो अब एक्स इंटरन्यूक्लियर माना है, तो एक्स एक्स के अलावा कौन आएगा, पी एक्स आएगा। तो पी एक्स कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा। तो व्हेन वी विल ड्रॉ इट, विल गेट टू नो दैट ये कौन सा ओवरलैप हो गया, दिस इज पी एक्स ओवरलैप, पी एक्स ओवरलैप। क्या बनाया इसने, दिस इज पी एक्स ओवरलैप, बाद में लिखता हूं मैं क्योंकि अदरवाइज ये होगा। दिस पी एक्स ओवरलैप, कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। अब अगर ये एक्सिस एक्सियल के अलॉन्ग है, एक्सिस के अलॉन्ग है, तो पी वाई और पी वाई या पी जेड एक्सियल आ सकते हैं क्या, नहीं। तो पी वाई कैसे होगी, ऐसे पैरेलल, पी जेड कैसे होगी, ऐसे पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये पी वाई लैटरल ओवरलैप, पी जेड लैटरल ओवरलैप, अंडरस्टूड। सो देखो कैसे होगा। सो वन क्लाउड, अगर ये मेरी एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इफ दिस इज एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर नीचे, अबो बिलो, और एक फ्रंट बैक ऐसे होगा। ये पी वाई का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो गया ऊपर नीचे, ये पी जेड का हो गया आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखो कैसे दिखेगा तुमको, हाउ डज इट लुक लाइक, इट लुक लाइक दिस। ये तुम्हारा पी जेड ऐसे होगा, पी जेड, और ये होगा पी वाई ठीक है। देखो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विच इज फॉर्म, ये बना है पी जेड की वजह से, और ये जो बनेगा ये बनेगा पी वाई की वजह से। और फेजेस अगर बनाना चाहते हो, दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव
पॉजिटिव नेगेटिव, दिस पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है. सो दिस ऑर योर N2 लुक्स लाइक. तो N2 में हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? 2 पाई बॉन्ड्स. सो इन N2 मॉलिक्यूल 2 pi bonds are there, 2 pi bonds, clear. So देखो n n पहला जो बॉन्ड बनाओ सिग्मा था, ड्यू टू सपोज x आयन है, x आयन है, तो ये जो सिग्मा बना है ये किससे बना है? px px सिग्मा बॉन्ड, क्लियर. दूसरे की बात करते हैं, ये py py पाई बॉन्ड, और तीसरे की बॉन्ड करते, तो तीसरा क्या हुआ? pz pz पाई बॉन्ड, ठीक है. और ये लोन पेयर बची है तुम्हारी s ऑर्बिटल में. कौन से ऑर्बिटल में? s ऑर्बिटल में. दैट्स हाउ योर N2 फॉर्म, राइट. सो N2 में दिस पाई बॉन्ड कितने लो बने? सो 4, N2 हैज 4 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, 4 इलेक्ट्रॉनिक clouds due to 2 pi bonds, clear. Above below front back, above below front back. तो बेसिकली क्या हो रहा है देखो, अगर मेरी ये आयने है, आयने, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऐसे और ऐसे, ऊपर नीचे और आगे पीछे. तो एक अगर तुम लोग देखते हो तो इधर भी है इलेक्ट्रॉन, इधर है, इधर है और इधर है. समझ में आया? अगर मैं बोलता हूं ये एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और अगर ये py ने पाई बॉन्ड बनाया, py, तो py pz, तो बेटा ये दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है, बिकॉज py एक्सिस एंड pz एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो बोथ द पाई बॉन्ड्स हियर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, both the pi bonds are perpendicular to each other. और अगर मैं बोलता हूं कि ये अगर py ने पाई बॉन्ड बनाया है, तो ये py पाई बॉन्ड के लिए ये xz क्या हो गया? नोडल प्लेन. वैसे ही अगर ये pz ने बनाया है तो उसके लिए py क्या हो गया? नोडल प्लेन. सो फॉर py पाई बॉन्ड xz is a nodal plane, for pz पाई बॉन्ड xy is a nodal plane. So both the pi bonds are perpendicular to each other and their nodal planes are also perpendicular to each other. तो N2 मॉलिक्यूल में दो नोडल प्लेन, दो पाई बॉन्ड है ना? एक ही दो एटम्स के बीच में ही अगर दो पाई बॉन्ड होते हैं, so both the pi bonds are perpendicular to each other and their nodal planes also perpendicular to each other. तो यहाँ पे जो चार इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है ना, ऐसे they will form a cylindrical cloud of an electron. क्योंकि 3D में बात कर रहे हैं, ऐसे जा रहा है, ये पूरा क्लाउड है ऐसा, है ना, और ये ऐसे 3D में वेरी होते जा रहा है. सो दैट विल फॉर्म अ 3-dimensional cylindrical cloud of an electron. So in N2 molecule, 4 electronic clouds form cylindrical cloud of an electron, cylindrical cloud of electron. ठीक है, क्लियर है? Here both pi bonds are पर आयने को तो परपेंडिकुलर होना ही है, आयने को तो परपेंडिकुलर डेफिनेटली है. बोथ द पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू आयने, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, and also their nodal planes are perpendicular to each other. So दोनों पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर है और दोनों के नोडल प्लेन्स भी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर. ओके, so both the pi bonds are perpendicular to each other and their nodal planes also perpendicular to each other. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया. सो दिस हाउ वी आर डन विद द p pi ओवरलैप. तो पाई बॉन्ड किसने बनाया है? p ऑर्बिटल ने बनाया है. s ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड बना सकती है क्या? नहीं बना सकती है. तो अभी हम लोगों ने पाई बॉन्ड देखा है, तो पाई बॉन्ड किसने बनाया है? p ऑर्बिटल. सो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो ss ओवरलैप हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा,
sp ओवरलैप हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। pp अगर एक्सियल है तो सिग्मा है, और pp अगर साइडवेज या लैटरल है तो क्या है, पाई बॉन्ड। ओके, सो s ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगी। अब हम लोग मूव करेंगे p पाई d पाई ओवरलैप की तरफ। कौन से, p पाई d पाई और d पाई d पाई। सो देखो, सपोज आई एम कंसिडरिंग x एज INA। अगर x INA कंसिडर करता हो तो जो मेरी p है, p कौन सी p पाई बॉन्ड बना सकती है, py या फिर pz, या फिर चलो यहां पे ये x एक्सिस, ये y और ये z, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई मेरी y, ये हो गई मेरी x, ठीक है। यहां पे भी मैं वैसे ही बना देता हूं, दिस इज x, दिस z, दिस y। तो पाई बॉन्ड कौन बना सकती है, अगर x INA है तो p में से पाई बॉन्ड कौन बना सकती है, py या फिर pz। क्लियर है। तो बेटा ये प्लेन कौन सा हो गया मेरा, ये प्लेन जो हो गया, ये ये जो ऑर्बिटल है py, ये कौन सा प्लेन हो गया मेरा, xy प्लेन हो गया, और ये कौन सा प्लेन हो गया, xz प्लेन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं ये p है, तो इनिशियली जब हम लोगों ने p पाई बॉन्ड देखा था तो py के साथ कौन बॉन्ड बना सकता था, py, pz के साथ कौन बॉन्ड बना सकता था, pz, राइट। अब हमको d की ऑर्बिटल चूज करनी है, तो d की ऐसी कौन सी ऑर्बिटल ले जो इसके साथ पाई बॉन्ड बना सकती है। तो क्या लेंगे, देखो इसको क्या चाहिए, पैरेलल चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल चाहिए। तो ऑलमोस्ट पैरेलल की जब बात करते हैं तो ऐसी ही दिखनी चाहिए। तो ये प्लेन कौन सा है, इसको पैरेलल वाली ऑर्बिटल उसी प्लेन में चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। ये कौन सा प्लेन है, xy, तो xy प्लेन में होनी चाहिए। सो दिस इज xy, तो ये कौन सी होगी, dxy, कौन सी होगी, dxy। क्योंकि अगर मैं लेता था dx² माइनस वाई स्क्वायर, तो बेटा dx² माइनस वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग क्या है, x है, अलोंग x है, तो चलेगी क्या, नहीं चलेगी। बिकॉज पाई बॉन्ड बनाने के लिए देयर शुड नॉट बी एनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग INA, ठीक है। तो dx² माइनस वाई स्क्वायर चलनी ही नहीं है। कौन सी ले ली मैंने, dxy। अब देखो dxy इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू py, ऑलमोस्ट पैरेलल टू py एंड ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है 45 डिग्री पे, लेकिन हम लोग उसको बोलते थे कि हाँ भाई हाँ है, परपेंडिकुलर टू है, ऐसी है, ठीक है, क्लियर है। तो ये py है और ये क्या है, dxy है, क्लियर है। वैसे ही अगर मैं pz देखता हूं तो ये कौन सा प्लेन हो गया, ये xz प्लेन हो गया, और ये y एक्सिस ऐसी आ रही है। तो इस प्लेन में ये pz को पैरेलल कौन सी होगी, dxz होगी। कौन सी होगी, dxz। सो ये होगी तुम्हारी dxz। तो आप देखो क्या होगा, अब ये आएंगे ओवरलैप करेंगे तो कैसा ओवरलैप होगा, सो दिस ओवरलैप विल बी टेक्स प्लेस लाइक दिस। क्लियर है, ये भी ऐसे होगा। क्लियर, सो हियर द ओवरलैप टेक्स प्लेस ओवर हियर। So this will be your overlapping area. This is overlapping area. ठीक है। सो अगर मैं x INA ले रहा हूं तो p की कौन सी पाई बॉन्ड बना सकती थी, py या फिर pz, और py के साथ कौन सी d लेनी पड़ेगी मुझे, dxy, बिकॉज मुझे उसको ही पैरेलल चाहिए, ऑलमोस्ट पैरेलल। तो ये py है, तो इस py को इस प्लेन में चाहिए, तो ये py को कौन पैरेलल कर सकती है, ये कौन सा प्लेन हो गया बेटा, ये प्लेन हो गया xy। अगर ये x है, ये y है और ये z है, यहाँ पे z को मैंने बाहर निकाला है, यहाँ पे मैंने y को बाहर निकाला है, तो यहाँ पे ये प्लेन में कौन सा हो गया, dxy।
इस प्लेन में इसको पैरेलल मतलब इसी प्लेन में चाहिए, इस प्लेन में, और ये प्लेन कौन सा है xz, तो कौन सी हो जाएगी dxz, तो py dxy दैट विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड, pz dxz दैट विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड, ओके। py dxz कोई बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं, बिकॉज अगर ये z ऐसी आ रही है तो dxz तुम्हारी py ऐसी रहेगी और dxz ऐसी रहेगी, py ऐसे और dxz ऐसे, तो ओवरलैप हो सकता है क्या, नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों नहीं ली, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में तुमको अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती थी, क्लियर है, समझ में आया। वैसे ही dz स्क्वायर, जो dz स्क्वायर है, अब तुम बोलोगे यहाँ पे सर dz स्क्वायर क्यों नहीं लिया, वाई वी हैव नॉट टेकन dz स्क्वायर, बिकॉज dz स्क्वायर में सभी ऑर्बिटल के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, समझ में आएगी नहीं बात। सो dz स्क्वायर ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अलोंग ऑल एक्सिस, ये एस जैसी है, सो dz स्क्वायर कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगी, इसलिए pz ऐसी होगी, dz स्क्वायर ऐसी होती थी, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है xy प्लेन में, मतलब अलोंग एक्स आयन इंटरन्यूक्लियर अलोंग एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती थी, इसलिए बनाएगा क्या, नहीं। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा p पाई d पाई बॉन्ड, कौन सा p पाई d पाई, तो पहले हम लोग पढ़े हैं p पाई बॉन्ड, अब पढ़ लिया हम लोगों ने p पाई d पाई, सो दिस इज व्हाट p पाई d पाई बॉन्ड, ऐसे दिखेंगे तुम्हारे p पाई d पाई बॉन्ड, ऐसे ओवरलैप करेंगे, क्लियर है। नाउ वी विल सी अबाउट d पाई, हम लोग बात करेंगे d पाई बॉन्ड की। तो अगर मैं x को आयने मानता हूं, x को आयने मान लिया, ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं, ये x, ये y और ये z, ठीक है, इस वाले केस में, और वैसे ही x z y, क्लियर है। तो अब देखो xy है, मेरी x अगर आयने है तो मैं क्या बना लूं, x आयने है तो पाई बॉन्ड कौन बना सकती है, py, वैसे ही पाई बॉन्ड कौन बना सकती है, dxy, तो अब मैं 2 dxy ले लेता हूं, 2 dxy, 2 dxy आई एम टेकिंग, ये xy प्लेन हो गया मेरा, क्योंकि मैंने x इसको बोला है, y इसको बोला है, यहाँ पे x इसको बोला है और z इसको बोला है, तो ये कौन सा हो जाएगा xz, इस केस में ये xz, इस केस में ये xy, ठीक है, ये dxy, ये दूसरे dxy, ठीक है, कौन सा प्लेन हो गया, ये dxy और ये भी dxy, क्लियर, dxy फेजेस बना लेते हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, सो बेटा ये ओवरलैप हो जाएगा, तो ये ओवरलैप होगा तो कैसे दिखेगा, रिजल्टेंट कैसे दिखेगा तुमको जब ओवरलैप हो जाएगा, सो रिजल्टेंट विल बी लुक लाइक दिस, रिजल्टेंट विल बी लुक लाइक दिस, resultant will look like this, यहां पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है, यहां पे ओवरलैपिंग हो गई तुम्हारी। सो अगेन हाउ मेनी लोब्स आर इंटरैक्टिंग, 2 लोब, हर एक ऑर्बिटल में कितने लोब इंटरैक्ट कर रहे हैं, 2 लोब, सो दिस विल फॉर्म योर, दिस इज d पाई बॉन्ड, d पाई बॉन्ड ड्यू टू dxy ओवरलैप। वैसे ही अगर मैं xz की बात करता हूं तो xz भी वैसे ही होगा, खाली कौन से प्लेन में होगा, xz प्लेन में होगा, बराबर है, इस वाले केस में लेता था, इस वाले केस में xz, तो ये y हो गई, तो dxz मतलब ऐसे आती थी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये ऐसी xz और ये दूसरी xz ऐसे, क्लियर है, तो ऐसे ओवरलैप हो जाता था हमारा, ठीक है। सो यहीं पे दिखा देते हैं हम लोग, ये xz और ये दूसरी xz, ठीक, सो ये फिर से ओवरलैप करेंगे, रिजल्टेंट
ठीक है, यहां पे बन गया तुम्हारा ओवरलैपिंग एरिया। कौन सा पाई बॉन्ड है बेटा ये? डी पाई बॉन्ड, डी पाई। ठीक है, किसकी वजह से बनाई है? डी एक्स जेड की वजह से। क्लियर है? सो डी एक्स जेड डी एक्स वाई दे फॉर्म पाई बॉन्ड व्हेन एक्स इज अ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर है? अब देखो तुम लोगों ने एक चीज कह रही होंगे, हम लोगों ने डी एक्स वाई लिया है, डी एक्स जेड लिया है, मतलब द पाई बॉन्ड इज अ फॉर्म इन द प्लेन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के प्लेन में बन रहा है, बराबर है, बट इट इज नॉट फॉर्म अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सो पाई बॉन्ड बिटवीन डी ऑर्बिटल इज फॉर्म in the plane of internuclear axis but it is not along the internuclear axis। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं डेल्टा बॉन्ड की। देखो dxy हो गया, dxz भी हो गया, बची क्या है? dyz। तो बेटा जो dyz बची है ना वो बनाएगी तुम्हारी डेल्टा बॉन्ड। अब देखो होगा कैसे, दैट वी विल सी। क्यों बॉन्ड बनेगा कैसे, डेल्टा बॉन्ड कैसे बनेगा, दैट वी विल सी। ओके, सो अगर मुझे डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखना है तो अब डेल्टा बॉन्ड कैसे होगा वो देखेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने पी पाई देख लिया है, पी पाई डी पाई देख लिया है और डी पाई देखा है, लेकिन कौन से बॉन्ड देखे हैं? पाई बॉन्ड, जहां पे कितने लोब इंटरेक्ट करते हैं? 2 लोब इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक्स आयन लेता हूं, एक्स आयन क्लियर है, और अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मैं इसको एक्स बोल रहा हूं, तो ये हो गई मेरी वाई, ये हो गई मेरी जेड। क्लियर है? तो बेटा ये है x, ये है y और ये है z, x y z। y z। अब x तुम्हारी तरफ आ रही है, ऐसे प्लेन के बाहर निकल रही है, तो x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये हो गई। ये कौन सी हो गई? ये प्लेन कौन सा हो गया? जो बोर्ड है मेरा व्हाइट बोर्ड, ये बोर्ड कौन सा प्लेन हो गया? yz प्लेन। तो yz प्लेन में मैं बना लेता हूं कौन? yz में प्लेन में मैं बना देता हूं dyz। तो ये एक एटम की dyz हो गई, बराबर है। ये एक एटम है तुम्हारा, मान लो ये मेरा हाथ है, ऐसे समझो, ठीक है। ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है। क्लियर? ये कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स एक्सिस। तो ये प्लेन कौन सा हो गया? yz, और ये प्लेन कौन सा हो गया? yz। तो बेटा देखो ये अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ऐसी, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसकी yz, इस एटम की yz कैसी होगी? ऐसी होगी yz। और ये जो ये वाला एटम है इसकी yz ऐसी होगी। क्लियर है? तो यहां पे ये yz क्लियर, ऐसे जो मैंने बनाया, और एक yz दूसरे की इसके सामने, लेकिन यहां पे अभी मैं ड्रॉप बगल में ही करूंगा, लेकिन जो yz होगी वो कहां पे होगी? सामने होगी। कहां पे होगी? सामने, क्योंकि एक्स एक्सिस ऐसे आ रही है, एटम है ना तुम्हारा ऐसे, तो सिग्मा बॉन्ड तो अलोंग एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनेगा, ऐसे बना। तो ये yz और इसके सामने और एक yz, और एक yz इसके सामने, बाजू में नहीं है, ठीक है, लेकिन 3D में हम लोग दिखा नहीं सकते इसलिए ऐसे दिखा दिया मैंने। तो अब देखो क्या होगा, ये है और इसके सामने ये है, तो यहां पे ये ऐसा है और यहां पे ये ऐसा है। तो बेटा इस लोब के सामने ये लोब, इस लोब के सामने ये लोब, इस लोब के सामने ये लोब और इस लोब के सामने ये लोब, कितने लोब इंटरेक्ट कर रहे हैं? 4 लोब इंटरेक्ट कर रहे हैं। कितने लोब? 4 लोब। मतलब ये लोब इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये लोब इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये लोब इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है और ये लोब इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज 4 लोब इंटरैक्शन। 4 लोब इंटरैक्शन, ये भी साइडवेज ओवरलैप है, एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड। तो ये हो गया तुम्हारा डी डेल्टा। तो पी कभी भी डेल्टा बॉन्ड बना सकती है क्या? नहीं, बिकॉज पी में सिर्फ 2 ही लोब होते हैं। कौन बना सकते हैं डेल्टा? डी ऑर्बिटल। कौन सी? डी ऑर्बिटल। क्लियर है? सो 4 लोब इंटरेक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डेल्टा बॉन्ड। क्लियर हो गया? सो ये हो गया हमारा डेल्टा बॉन्ड। अब देखो ये कौन सी ऑर्बिटल ली थी मैंने? अगर एक्स आयन ले रहा हूं तो ये मेरी कौन सी ऑर्बिटल होगी?
dy z. So delta bond is formed in the plane which is perpendicular to INA. डेल्टा बॉन्ड कौन से प्लेन में बन रहा है? उस प्लेन में बन रहा है जो आयने को क्या है, परपेंडिकुलर. मेरी आयने कौन है? x, और ये yz क्या होता है? उसका परपेंडिकुलर. x एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू yz, तो x एक्सिस को परपेंडिकुलर है yz. सो द डेल्टा बॉन्ड इज फॉर्म इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू INA. पाई बॉन्ड इज फॉर्म इन द प्लेन ऑफ INA बट नॉट अलोंग INA. अलोंग INA बनता है क्या? नहीं बेटा, INA के अलोंग तो बन ही नहीं सकता है, पाई बॉन्ड है, डेल्टा बॉन्ड है. सो ये अलोंग INA बनना नहीं है. डेल्टा बॉन्ड इज अ 4 लोब इंटरेक्शन, पाई बॉन्ड इज अ 2 लोब इंटरेक्शन. सो दिस इज हाउ इट फॉर्म अ डेल्टा बॉन्ड. अब मुझे बताओ, सिंस इट इज अ 4 लोब इंटरेक्शन, कभी भी dz² कभी भी पाई बॉन्ड बना सकती है क्या? नहीं. वैसे ही dz² सिग्मा डेल्टा बॉन्ड भी नहीं बनाएगी, बिकॉज dz² के पास कितने लोब होते हैं? 2 लोब. सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड. So dz² never form delta bond since it has only 2 lobes. It has only 2 lobes, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 लोब होते हैं. तो डेल्टा बनाएगा क्या? नहीं. और डेल्टा बॉन्ड सिर्फ कौन बनाता है? कौन बनाएगा डेल्टा बॉन्ड? सिर्फ d ऑर्बिटल बनाएंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग यहां पे एक स्टेटमेंट बनेंगे रिगार्डिंग d ऑर्बिटल्स. d ऑर्बिटल्स, नोट, d ऑर्बिटल्स फॉर्म pi bond with each other d orbital form pi bond with each other in the plane of d orbitals which are parallel to each other, लिख देंगे, which are parallel to each other, form pi bond with each other in the plane of INA but not along INA, whereas d orbital will form delta bond in the plane perpendicular to INA, in the plane perpendicular to INA. तो d ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड बनाए गए जब वो परपेंडिकुलर प्लेन में है ना, पर डेल्टा बॉन्ड इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू INA और इन द प्लेन बट नॉट अलोंग. ठीक है, तो अगर मैं देखो, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर मैं कोई एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देखता हूं तो अभी कौन से बॉन्ड बन सकते हैं, नहीं बन सकते, वो हम लोग देख लेंगे. ठीक है, सो इतना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है. तो अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की डिस्कशन करता हूं बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, तो बाद में तो देख लेंगे, बट हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा, पाई और डेल्टा की बात करते हैं. तो सिग्मा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, पाई में थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डेल्टा में और डिस्ट्रीब्यूट हो गई. तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा हो गया? सिग्मा स्ट्रॉन्गर देन पाई, स्ट्रॉन्गर देन डेल्टा, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. क्लियर? सो सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई, स्ट्रॉन्गर देन डेल्टा. अब अगर मैं हर एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग एक बॉन्ड मतलब बता देता हूं कैसे बनेगा. तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा y और z. ठीक है, मैं x के अलोंग सभी बात कर लेता हूं. x एक्सिस कि x एक्सिस अगर मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो कौन से बॉन्ड बनेंगे, कौन से बॉन्ड नहीं बन सकते हैं. तो इफ x इज INA, x इज INA, अगर x INA है तो SS क्या बन सकता है? सिग्मा बॉन्ड बन सकता है. SPX सिग्मा बॉन्ड, SPY नो बॉन्ड,
एस पी जेड नो बॉन्ड, ठीक है। पी एक्स सिग्मा बॉन्ड, पी वाई पाई बॉन्ड, पी जेड पाई बॉन्ड, ठीक है। ये दोनों कौन से बॉन्ड हो गए तुम्हारे? पी पाई नेचर के। कौन से? पी पाई नेचर, ओके। सिमिलरली अगर मैं पी पाई डी पाई की बात करता हूं तो पी वाई के साथ कौन आएगी? डी, कौन सी डी आएंगी? जिसमें वाई आना चाहिए और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के प्लेन में होनी चाहिए, तो डी एक्स वाई। वैसे पी जेड के साथ डी एक्स जेड पाई बॉन्ड, ठीक है। डी कभी भी उसी प्लेन में बनाएगी जिस प्लेन में तुम्हारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो पी वाई को पैरेलल वाई होगी और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, सो दिस इज पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड, ठीक है। वैसे ये हो गया तुम्हारा पी पाई डी पाई। फिर अगर आगे की बात करते हैं तो आ जाएगा, अगर डी है तो डी कौन से पाई बॉन्ड बनाएगी? इन द प्लेन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो तुम्हारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन है? एक्स है, तो डी एक्स वाई डी वाई जेड, डी एक्स वाई डी एक्स जेड, ये भी क्या बनाएगी? पाई बॉन्ड। लेकिन ये पाई बॉन्ड का नेचर क्या होगा तुम्हारा? द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड विल बी डी पाई, ओके। देन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, डी वाई जेड, ये क्या बनाएगी बेटा? डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। ये क्या बनाएगी? डेल्टा बॉन्ड, डी डेल्टा, क्लियर। सो बेटा ऐसे तुम्हारे ओवरलैप होंगे। अब कौन से नहीं हो सकते, ये तो मैंने जनरल बता दिया तुमको। पी वाई पी जेड नहीं बन सकता कुछ भी, पी एक्स पी वाई कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज एक्स इंटरन्यूक्लियर, ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? एक्स इंटरन्यूक्लियर। पी वाई पी जेड नहीं होगा, पी एक्स पी जेड कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये जो मैंने लिखे हैं जो बॉन्ड बन रहे हैं उनके अलावा कोई और बॉन्ड बन ही नहीं सकता, समझ में आया? इनके अलावा कोई और ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती है। तो अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो तुम्हारा डी एक्स वाई पाई बॉन्ड बनेगा, डी एक्स जेड पाई बॉन्ड बनेगा, डी वाई जेड डेल्टा बनेगा, ठीक है। क्लियर। सो अगर मैं बात करता हूं वाई एज आईएनए की, तो वाई एज आईएनए में क्या बात होगी? वाई एज आईएनए में वाई एज आईएनए में क्या होगा तुम्हारा? बताओ। एस एस, तुम लोगों को जेड एज आईएनए करना है बेटा, मैं वाई एज आईएनए करके दे रहा हूं। एस एस सिग्मा, एस पी वाई सिग्मा, एस पी एक्स कुछ भी नहीं, एस पी जेड कुछ भी नहीं, पी एक्स पाई, पी वाई सिग्मा, पी जेड सिग्मा, फिर पी एक्स डी एक्स वाई पाई, पी जेड डी वाई जेड पाई, डी एक्स वाई पाई, डी वाई जेड पाई। ये सब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के प्लेन में बन रहे हैं। और अब अगर मैं बात करता हूं डी एक्स जेड वाई एज आईएनए था, तो ये क्या बनाएगा? डेल्टा बॉन्ड। ये क्या बनाएगा? डेल्टा बॉन्ड। एंड डेल्टा बॉन्ड इज व्हाट? इट्स अ फोर लोब इंटरैक्शन, क्लियर है? इज थिंग अंडरस्टूड? समझ में आया बेटा? चलो अगर चलो हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं, जेड की भी बात कर ही लेते हैं अभी, उसको क्यों पेंडिंग रख के। जेड की बात करनी है, जेड एज आईएनए, तो जेड एज आईएनए में क्या क्या बन सकता है? चलो तुम लोग सोचो, मैं आंसर देता हूं। जेड एज आईएनए, अगर जेड आईएनए रख दिया तो क्या क्या होगा बताओ? एस एस सिग्मा, एस पी एक्स कुछ भी नहीं, एस पी वाई कुछ भी नहीं, एस पी जेड सिग्मा, क्लियर? पी एक्स पाई, पी वाई पाई, पी जेड सिग्मा, क्लियर? देन पी एक्स डी एक्स जेड पाई,
पी वाई डी वाई जेड पाई, देखो ऐसे देखना, x को पैरेलल x और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंटेन होनी चाहिए, y को पैरेलल y और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंटेन होनी चाहिए, तो पाई बॉन्ड बनेगा। वैसे ही d कौन सी इंटरन्यूक्लियर है, z, मतलब dxz और dxz, x को पैरेलल x और z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, yz y को पैरेलल y और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और अभी परपेंडिकुलर मतलब xy, ये क्या बनाएंगे तुम्हारे, ये बनाएगा पाई बॉन्ड, ठीक है, और ये बनाएगा डेल्टा बॉन्ड। तो डेल्टा बॉन्ड और एक बना सकती है, कौन सी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह भी क्या बनाएगी, डेल्टा बॉन्ड। क्या बनाएगी, डेल्टा बॉन्ड, बिकॉज जेड एज आयन है, मान लो ये जेड है तुम्हारी तरफ आ रही है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसी होगी और ऐसी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, कितने लोग इंटरेक्ट करेंगे, 4 लोग इंटरेक्ट करेंगे। कितने लोग इंटरेक्ट करेंगे, 4 लोग इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। और क्या क्या बन सकता है, चलो देख लेते हैं। और पीजेड और डीजेड स्क्वायर, ये भी अलॉन्ग आयन आ सकते हैं, डेल्टा कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, ये एक्सेस है बेटा, ये जेड के केस में और ज्यादा बन सकते हैं, पीजेड डीजेड स्क्वायर बन सकता है। देन डीजेड स्क्वायर क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है। फिर एस डीजेड स्क्वायर भी, मतलब ये होते नहीं है लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई चलो एस डीजेड स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। अगर क्वेश्चन आया तो ये क्या बन सकते हैं तुम्हारे, और सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं, क्लियर है। दिस इज द केस ऑफ जेड एज आयन है, तो जेड एज आयन में ये सब बनेंगे, क्लियर है। तो हम लोगों ने आज डिस्कस क्या किया, बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड। तो जब पाई बॉन्ड बनता है, तो अभी मान लो कि बेटा कोई भी 2 एटम के बीच में 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो अगर किसी ने, अगर एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, तो अगर एक जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं और 2 एटम के बीच में बन रहे, तो जेड के अलॉन्ग सिग्मा बनाऊंगा, तो पाई किसके अलॉन्ग बनाऊंगा, अगर पी से बन रहा होगा तो पीएक्स पीवाई। तो अगर 2 पाई बॉन्ड, अगर 2 ही एटम के बीच में 2 पाई बॉन्ड है, तो दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो उनके नोडल प्लेन्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर है। सो ये जो भी पाई बॉन्ड बन रहे हैं और डेल्टा बॉन्ड बन रहे हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू आयन, दे आर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू आयन, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अबो बिलो होता है, फ्रंट बैक होता है, ठीक है। सो इन दिस केसेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सिंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड्स डिक्रीजेस, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड डिक्रीजेस। तो अगर मैं बात करता हूं डेल्टा बॉन्ड की, तो डेल्टा बॉन्ड का देखो, पाई बॉन्ड तो हमको बहुत मिलेंगे, डेल्टा बॉन्ड जो है वो कौन बनाता है, ठीक है। उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तुमको, मतलब है नहीं हमको ज्यादा। सो डेल्टा बॉन्ड डीजेड स्क्वायर तो कोई नहीं बनाएगा, सो डेल्टा बॉन्ड का एग्जांपल सी। अभी हम लोग कभी भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा एम एटम के बीच में 4 बॉन्ड बन सकते हैं क्या, नहीं, बट होते हैं 4 बॉन्ड। नन ऑफ द, उसको बोलते हैं बेटा क्वाड्रैपल। जैसे ये कंपाउंड है Re2Cl8 2- रेनियम, ठीक है, और एक 2-। यहां पे इन 4 बॉन्ड्स में कौन से बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 1 डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रैपल, ठीक है, इज कॉल्ड एज क्वाड्रैपल। सो नन ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स विथ ईच अदर, नन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट will form delta bond with itself। कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट डेल्टा बॉन्ड बना सकता है क्या, सेम एटम के साथ नहीं, और आपस में भी नहीं, विथ इटसेल्फ एज वेल एज अदर्स। ये सिर्फ कौन बना सकते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से, डी ब्लॉक। और अगर एग्जांपल देना चाहो तो एक होता है MN CO, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। सो ये जो हो गए, ये हो गए हमारे डेल्टा बॉन्ड, क्लियर है। तो डेल्टा बॉन्ड की एग्जांपल है, और बात करेंगे हम लोग
तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड, तो आगे हम लोग इनके स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ठीक है। सो हियर वी आर कंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर, डन फॉर द डे, थैंक यू।